In the previous session, we studied about stack. Am I right? In the previous session, we Yes. studied about stack. Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, sir. But why our today's session is so important? Because in this session, we will attempt those questions which which was the part of our board examination paper, है ना? तो we will attempt those questions which was the part of our board examination paper. Either that paper was 2025 or 2024 or 2023, है ना? तो हम लोग वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे आज इस टैग के जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर के पार्ट थे. ऑल राइट, चाहे वो 2025 हो या 2024 हो या 2023 हो, है ना? अच्छा, कुछ बच्चे हैं जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं आजकल, जैसे देवांश हुआ, वैभव हुआ, शिवांग है, सुमित लास्ट क्लास में था, आज अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और वंशिका है, और आज तो अभी लक्ष्मी ने भी नहीं ज्वाइन किया है. सो प्लीज इन्फॉर्म दैम. Sir, I am. Okay, okay, okay. Sorry, Lakshmi, you are present. Okay. Now, so beta, first of all, the question which we will attempt, that one is the question which was in our 2023 board exam. Okay. अब वो क्वेश्चन क्या क्या है हमारे 2023 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन, इसको हम पढ़ेंगे और साइमल्टेनियसली अटेम्प्ट करेंगे, राइट? सो बच्चे, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टैक? As they are saying, to create CLR Mistake. contains record of some colors. Record of some colors मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूं बेटा. Each record is represented as a tuple. आपको भी अपने पेपर में ऐसे ही मेन कंटेंट्स को हाईलाइट करना है, सो देयर विल बी नो मिस्टेक व्हेन यू विल अटेम्प्ट, है ना? तो हमें स्टैक बनाना है, स्टैक विच विल कंटेन कलर्स, एंड ईच रिकॉर्ड इज Computer. represented using tuple, है ना? और उसमें देयर विल बी 4 एलिमेंट्स: कलर नेम, राइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, and this will be of type string. And red, green, blue, that means are integer value. अब यहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये लोग कलर नेम बोल रहे हैं, फिर कलर नेम के साथ में इंटीजर वैल्यू बोल रहे हैं. बेटा एक्चुअली क्या होता है, देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ RGB कलर्स. एम आई राइट? RGB, Yes, है sir. ना? Yes, हर sir. कलर का एक कॉम्बिनेशन होता है ना, RGB कॉम्बिनेशन. तो उसी के बिहाफ पर बोला है, दे गिवन यू एग्जाम्पल येलो, एंड येलो का जो शेड है, दैट शेड इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस RGB. ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. So there will be several records, okay, like this. तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, so it will be quite easy for all of us to attempt, right? If there could be some changes, I'll do those changes. What is the name of stack, beta? CL CLR stack. Your last. is equal to इनसाइड द लिस्ट, इनसाइड द लिस्ट, है ना? लिस्ट के अंदर रिकॉर्ड्स बोले हैं ना, सो बेटा दिस वन विल बी एज अ टाइप ऑफ रिकॉर्ड. ये बेटा एज अ रिकॉर्ड होगा. ओके बेटा? नाउ CLR stack. So inside the tuple, here I am writing yellow as a string बोला था ना, 237 250 68. One more I will write. I'm not going to write that much. Few only I will write. One is like this blue. So this one will be our beta next record na. And some combinations I will mention here, like 220,
221, or maybe 90, like this. And here I will close this list. So in this list, how many records are there, beta? 2. 2. Now what they are saying, we need to create push underscore CLR, and in this one push we need to pass our stack new underscore CLR. Now we need to understand this. What is this new underscore CLR? This function takes the stack and a new CLR as argument and pushes these new record onto stack. तो हमारा CLR स्टैक के अंदर से बेटा हमको किसमें पुश करना है? किसके अंदर पुश करना है बेटा? न्यू CLR New CLR. न्यू CLR, यस। तो इसको हम नीचे कर देते हैं एंड वी विल टेक वन मोर न्यू underscore C is capital, so I will take in capital as a list, right beta? Or at the top I will write my function def push underscore CLR. Now CLR STACK comma new underscore CLR. All right. And we need to push records from this inside this. Okay, beta? Now, in this one, so simply, हमें बेटा, is there some choice to push? Yes or no? Is there some choice to push beta? Yes or no? नो सर No. No. So here I will run my loop for I in CLR STACK. So beta, which value will be fetched inside I? I के अंदर कौन सी वैल्यू फैच हो जाएगी बेटा? CLR of 0 This one whole will be fetched by I, है ना? हमें लोकेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये पूरा रिकॉर्ड I में आ जाएगा, राइट? और जैसे ही ये रिकॉर्ड I में आ जाएगा एंड वी विल पुश दिस वन रिकॉर्ड इनसाइड new underscore CLR. So simply we need to write which function we supposed to use to push. Append. Dot New CLR. append, and in append we can write I. Yes or no? Yes, sir. Now Yes, sir. next time inside I, this one record will be fetched and this record will be appended in new underscore CLR. Okay beta? Okay. बट सर क्वेश्चन में तो जो न्यू रिकॉर्ड है वो न्यू CLR है और स्टैक तो फिर क्लियर स्टैक है, तो फिर इस हिसाब से तो आपने क्या करा है समझ नहीं Okay, आया। एक second, might be I made a mistake. This function takes a CLR stack and new record as argument and pushes those. This function pop the top. नहीं बेटा, वो वही है new underscore CLR. Okay, because उन्होंने बोला है कि हमारा R stack is बेटा CLR stack और उसमें से हमें बेटा किसमें पुश करना है? new underscore CLR में. Okay. तो न्यू अंडर स्कोर CLR में पुश करना है, फिर न्यू अंडर स्कोर CLR को पुश करना है। नो बेटा, हमारे स्टैक का नाम क्या दिया है? CLR स्टैक है ना, वो तो हमारा बिगनिंग CLR से ही है। अंडर स्कोर हाँ, वो ये दिया हुआ है ना, देखो इसमें पढ़ो, राइट? और सर इसमें से बस हमें न्यू अंडरस्कोर CLR एज अ आर्गुमेंट दे रखा है। वो भी आपका एज अ स्टैक ही मेंटेन होगा ना, न्यू अंडरस्कोर CLR भी। वो मैं अभी बता दूंगा वाई, अभी बता देंगे बेटा। ओके, ओके सर। अभी आ जाएगा, डोंट वरी, अभी आने ही वाला है नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन रीड करो, व्हाट इज योर नेक्स्ट फंक्शन? पॉप अंडरस्कोर CLR। Pop underscore CLR.
और बेटा उसमें पास करने के लिए किसको बोला है? CLR स्टैक को। दिस फंक्शन पॉप्स द टॉप मोस्ट रिकॉर्ड फ्रॉम द स्टैक एंड रिटर्न्स। तो बेटा किस में से पॉप करना है जरा बताओ? न्यूज CLR कौन CLRs. स्टैक में से? CLR स्टैक में से करना है बेटा, राइट? तो स्टैक तो हमारा यही है ना, हमें न्यू CLR स्टैक में से करना है एंड रिटर्न। और उस रिकॉर्ड को क्या करना है? रिटर्न। इफ द स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी, यहां अब इन पॉइंट्स को हमें मार्क करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। अगर हमारे स्टैक पहले से एम्प्टी है, देयर इज नथिंग इन द स्टैक, द फंक्शन शुड डिस्प्ले द मैसेज अंडर फिलो। ओके, सो डेफ पॉप अंडरस्कोर CLR, and in this one we need to pass our stack CLR STACK, right? अब इसमें से बेटा बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पॉप और वी विल चेक that there is something in this or not. First we will check. Yes, so I will simply check like this: if CLR stack equals to empty, is it okay? Is it okay? yes Yes, sir. So I will print my message under flow, UNDERFLOW, right? Else means if it is not empty, तो बेटा हमें इसमें से रिमूव किसको करना है? ऑल द रिकॉर्ड्स और टॉप मोस्ट? topmost Topmost. हाँ. टॉप मोस्ट ना। और वो भी उसको क्या करने के लिए बोला है? रिटर्न। दे आर सिंपली सेइंग रिटर्न, सो आई विल राइट हियर रिटर्न CLR stack dot pop. We will not pass any position. अगर आप में से कोई पोजीशन पास भी कर देता है तो आप -1 पास कर सकते हैं। यू पीपल कैन पास -1 और अदरवाइज सिंपली लीव लाइक दिस। अब प्रॉब्लम क्या है? दिस फंक्शन इज रिटर्निंग अ वैल्यू। बहुत क्रूशियल बात बता रहा हूं मैं आपको, इसको आप लोग समझ लीजिए। सो इन एल्स केस वी आर रिटर्निंग, बट इन इफ केस वी आर रिटर्निंग एनीथिंग। क्या हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं इफ केस में? नो सर। No, sir. एरर आ No, sir. जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, सो यू आर हैविंग टू ऑप्शंस। आइदर यू कैन राइट simple return in the case of if, okay, RETURN, right? Or maybe because they are saying print under flow, so that is why, because they are saying print under flow, तो इसलिए पहले मैंने तो प्रिंट करवा दिया, तो रिटर्न करने के लिए कुछ था नहीं इस केस में। सो मैंने क्या लिख दिया? सिंपल रिटर्न। एंड वी व्हेन वी आर नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, सो बाय डिफॉल्ट इट विल रिटर्न व्हाट बेटा? ये बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करता है? None. नन। None. और ये क्वेश्चन ऐसे भी सही हो सकता है, अगर आप में से कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख देंगे, इन द केस ऑफ इफ रिटर्न under below, then also this will be considered as correct. Okay बेटा? Yes, sir. हाँ। और बेटा बार बार जो आप लोग बोल रहे हो ना कि हमें तो सर न्यू CLR से CLR स्टैक में करना है, पॉसिबल ही नहीं है बेटा, क्योंकि CLR स्टैक ही तो कलर्स कंटेन कर रहा है हमारे। ठीक है ना? नेक्स्ट इज एम्पटी फंक्शन CLR स्टैक के लिए क्या करेगा? दिस फंक्शन चेक्स वेदर द स्टैक इज एम्पटी और नॉट। हमारा स्टैक एम्पटी है या नहीं है। इफ द स्टैक इज एम्पटी, फंक्शन शुड रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फंक्शन शुड रिटर्न फॉल्स।
तो हम लोग ठीक है भैया फंक्शन बना लेते हैं ये वाला. आई विल राइट हियर डेफ इज एम्प्टी CLR stack. Then we need to check this stack is empty or not. तो हम लोग यही लिखेंगे बेटा, CLR stack equals to empty. If it is empty तो बेटा रिटर्न क्या करना है? True. तो ट्रू का टी कैपिटल आएगा. अगर आपने ट्रू का टी कैपिटल नहीं बनाया तो ये आपको मार्क कट हो जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में. राइट? अब क्या कर लेंगे? आप सिंपल, आप इन फंक्शंस को चाहें तो आप कॉल कर लीजिए. पुश underscore CLR, and in this one you can pass CLR stack comma new underscore CLR, then pop underscore CLR. In this one we will pass CLR stack, then is empty. In this one again you need to pass CLR stack. Is it okay? Yes, sir. Yes. So each part of this question will contain 1 mark. So that is why this question is of 3 mark. तो इसमें आपको जो मैंने पहले बात फर्स्ट वाला बताई, फंक्शन एक और वो बता दो, पुश वाला. which one? सब पुश वाला. पुश वाले फंक्शन में आपको बेटा CLR स्टैक में से वैल्यूज को निकाल करके न्यू अंडरस्कोर CLR में फिल करना है. तो वो तो हम डायरेक्ट कॉपी फंक्शन से भी कर सकते हैं ना फिर. किस फंक्शन से? तो कॉपी फंक्शन से. देखिए, आपको करने के तरीके बहुत सारे हैं, बट आपको यह ध्यान रखना है कि आप वर्क क्या कर रहे हो. यू आर डूइंग वर्क ऑफ स्टैक ना. Yes, sir. और स्टैक में तो आपको पता है बेटा कॉपी फंक्शन का कोई रोल ही नहीं है. समझ में आ गया बेटा? तो हमें उसके नेचर को Yes, समझना sir. होगा कि हम अपना टास्क परफॉर्म किस पर कर रहे हैं. ठीक है बेटा? अच्छा, अच्छा. हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, पूछना चाहिए. बट मैंने आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया है इन दिस वन, बेटा आप जिस भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, काइंडली गो थ्रू ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर क्वेश्चन. ओके? Okay. Now, so there is one more question. अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, यू पीपल कैन टेक ए स्क्रीनशॉट. अदरवाइज आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन बेटा. If you wish, you people can take a screenshot beta. Really? Okay. Now the next one, B part of this one. देखिए, write the following user defined function in Python. Okay. क्या कर ओके क्या करवाना चाहते हैं हमसे, पहले वो समझ लेते हैं. पुश अंडरस्कोर ट्रेल, उसमें एक एन है और एक माई स्टैक है. पहले तो इन दोनों का मतलब समझना पड़ेगा. हियर एन and my stack are list, both are list beta, and my stack represent a stack. Okay, so my stack is your stack. The function should push the last 5 elements from the list n onto the my stack. Last 5 elements बच्चे किसमें? स्टैक में. ऑल राइट बेटा? Yes, sir. For example, if the n is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, then the function push underscore trail should push 3, 4, 5, 6, 7. In which beta?
किस में पुश करना है? My stack. माई स्टैक माई स्टैक में, राइट बेटा। तो बेटा हमारा माई स्टैक में जीरो लोकेशन पर कौन सा वैल्यू आना चाहिए? 3. 3, राइट बेटा, यही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पर आई टेक n इज इक्वल टू, बेटा कहीं भी डाउट, बहुत इजी क्वेश्चन है, कहीं भी डाउट आए तो बताना। एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एज एन एग्जाम्पल। ऑल राइट, नाउ आई विल टेक वन स्टैक, दैट स्टैक नेम इज माई stack is equals to empty beta, and here I will write push underscore trail, और उसमें मैं किसको पास करने वाला हूं? n कॉमा my stack is passed. Is it okay beta? Sir, spelling of push is incorrect. Okay, push, डेफ आएगा डेफिनेशन के लिए। ठीक है, अब तो ठीक है। push underscore trail, now def push underscore trail n comma my stack, we passed and we received। अब बेटा इसमें करना क्या था, पहले बस एक बार मुझे रिपीट कर दो, मैं भूल जाता हूं बहुत जल्दी जल्दी। सो यू पीपल कैन हेल्प मी टू रिमाइंड द थिंग्स। क्या करना है? एंड लिस्ट के लास्ट Last 5 five एलिमेंट्स को elements. स्टैक में पुश इसके करना है। लास्ट 5 एलिमेंट्स को my stack में पुश कराना. हाँ, लास्ट 5। From the list N. बट बेटा वन थिंग इज देयर, वी आर नॉट श्योर दैट दिस मच एलिमेंट विल बी इन आवर लिस्ट। हम ये श्योर नहीं है कि हमारी लिस्ट में इतने ही एलिमेंट होंगे। आवर लिस्ट could be contain this much number also. Am I right? Yes. यस सर। अब यही तो टर्निंग पॉइंट है जिस वजह से बोर्ड में मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया। दिस इज योर जीरो लोकेशन, 1 लोकेशन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। What is the length of this list beta? 9, 10, 10. 10 10 is the length, 10. right? And when the length of list n is 10, right? लास्ट 5 चाहिए ना हमको। तो अभी हम आपसे वर्बली पूछते हैं, लास्ट 5 एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा इस लिस्ट के? 21, 19, 18, 17, 16. मतलब वहां से चालू होंगे, राइट? तो 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5। सो 5 लोकेशन ऑनवर्ड्स, Yes, sir. 5 से Yes. लेकर के कहां तक? 9. 9 तक. और इसको टेक्निकली अगर आप बोले हैं तो लूप में यू मस्ट राइट फॉर आई इन रेंज 5 comma len of n. Am I right? यस सर। Yes. Yes. At present in this one, what is the length? 7. Yes. 7 is our length. So 7 minus 5, what will be the value? 2. यस सर। So our loop must starts from for I in range 2 comma len of n. Am I right or not? यस सर। Yes, sir. तो आपको इसका टेक्निकल पॉइंट समझ में आ गया क्वेश्चन का? यस सर। इस वजह से बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ दिया था। यू पीपल कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, क्योंकि फिर मुझे रिमूव कर दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नाउ
तो मैं यहां पर हियर इन दिस वन आई विल राइट माई लूप. I will take start s. S is equals to len of n minus 5. Is it okay? Yes, sir. sir. मैंने ये क्यों किया? मैंने ये इसलिए किया to fetch start location, right? Now for I in range कहां से चलेगा? S comma len of n. And Any problem? no, sir. No, No, sir. sir. And my stack dot append what? I. नाउ सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे. वरुण, वरुण, Yes, sir. दिस इज योर कॉल. आपके लिए है. जैसे आप बोल रहे थे ना कॉपी, मैं बेटा यहां पर भी तो इस तरीके से लिख सकता हूं ना. आई कैन राइट दैट माई स्टैक इज इक्वल्स टू एन ऑफ एस कोलन. यस और नो? Yes, sir. बट हम नहीं लिखेंगे बेटा स्टैक के केस में ऐसे, बिकॉज स्टैक मीन्स वन बाय वन अपेंड एंड वन बाय वन पॉप, राइट? ऐसे ही बच्चे गलती अब कर सर देते हैं. इसमें तो स्लाइसिंग से लिस्ट आएगी और उसमें हमको फिर डायरेक्ट अरे वो तो करना मैं है ना, भाई वैल्यू मैं टू वैल्यू। एक्सटेंड भी तो कर सकता हूं. एक्सटेंड भी तो हो जाएगा ना. तो स्टैक का मतलब होता है वन बाय वन अपेंड एंड वन बाय वन पॉप, राइट? सो दैट इज वाई बेटा उसका नेचर समझते हुए हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे. नाउ नेक्स्ट वन, पॉप अंडर स्कोर वन my stack. We need to pass my stack. The function should pop an element from the my stack and return this element. Pop करेगा, element को return करेगा. If the stack is empty, then the function should display the message stack underflow and return none. तो अच्छा आप इसमें मुझे ये बताओ, how many values supposed to pop by this one? कितनी 5. वैल्यू पॉप करनी है? यस. हाउ मेनी वैल्यू? 5. नो बेटा, ओनली वन वैल्यू. क्लियर वो बोल रहा है शुड पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक एंड रिटर्न. भाई रिटर्न तो एक बार में एक ही वैल्यू होगी. इफ द स्टैक इज एम्प्टी डिस्प्ले स्टैक अंडरफ्लो रिटर्न नन. सो वी शुड पॉप ओनली वन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप. But before that, we need to make sure either stack is empty or not. If my stack equals to empty, right? Then they are saying print what beta? Under flow. And in this case, return what beta? None. Okay beta? Else, if stack is not empty, my stack, right? I will write here return my stack dot pop. समझ में आ गया? Yes, sir. Now display all my stack. This function should display all the element of stack my stack without deleting them. बहुत अच्छी बात बोली है, बच्चे गलती कर जाते हैं, पॉप लगा जाते हैं. If the stack is empty, function should display the message empty stack. Okay? So def display underscore all my stack, right? But we need to make sure stack empty तो नहीं है. So again we need to write here my stack equals to empty. We need to print what? Print empty stack. Otherwise
else if stack is not empty, we should run our loop for I in range, because we need to run our loop always from the top. Len of my stack -1 comma -1, because it will run up to 0 ना बेटा, टॉप से लेकर के कहां तक रन होगा, 0 तक. प्रिंट माय स्टैक ऑफ आई. इज इट ओके? सर फॉर लूप में लास्ट में कॉलन नहीं लगाया है। ओके ओके, थैंक यू. नाउ इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. अच्छा ये बताओ, अभी स्टैक का ये प्रोग्राम कितने बच्चों को समझ में नहीं आया है? हाउ मैनी ऑफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट विद दिस प्रोग्राम? यू कैन रेज योर हैंड. अच्छा ठीक है, सब पॉप वन वाले में स्टैक का एस कैपिटल आएगा। हाँ वो तो हम कर देंगे, डोंट वरी. वो तो हम कर देंगे. स्टैक का pop_1 में ना स्टैक का एस कैपिटल ही तो लिया है, क्या प्रॉब्लम है? सब कॉलिंग में। अच्छा हाँ वो तो हम कर देंगे, ठीक है. अभी आप मुझे बस ये बता दो कि आप लोग में से अगर सबको आ गया समझ में, देन प्लीज गिव मी थम्स अप प्लीज. अगर आप लोग को समझ में आ गया है, यू पीपल कैन गिव मी थम्स अप. चलिए कोई नहीं, ठीक है. तो ये इस क्वेश्चन को बच्चे आप लोग क्या करेंगे? दिस क्वेश्चन you all need to note down in your fair copy along with question. Okay बेटा, Yes, note sir. सर down in एग्जांपल भी लिख। Yes. fair copy with question. क्वेश्चन के साथ में अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लेना. एंड एज अ होमवर्क मैं आपको 2 क्वेश्चन भेजूंगा 2024 का, 2023 का. आपको अटेम्प्ट करना है. और डे आफ्टर टुमारो व्हेन वी विल बी आवर नेक्स्ट क्लास, 6। okay, on 6th is which date? Friday. यस सर। जो मैं 2 क्वेश्चंस भेजूंगा 2023 और 2024 बोर्ड पेपर के, यू नीड टू अटेम्प्ट इन फेयर कॉपी. और फिर मेरे इस क्वेश्चन के साथ में यू नीड टू क्रॉस चेक. सॉरी, हाँ यस, फेयर कॉपी, ऑफ कोर्स फेयर कॉपी, एंड क्रॉस चेक विद मी, ठीक है. सो आई होप फ्राइडे को मेरा ये स्टैक का टॉपिक फिनिश हो जाएगा, देन आई विल स्टार्ट फंक्शन. ओके बेटा? Yes. यस सर। Yeah.